Hello everyone, welcome to today's discussion on From Resistance to Independence, India Prolonged Battle for Decolonization। हिंदी अर्थ है प्रतिरोध से स्वतंत्रता तक उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए भारत की लंबी लड़ाई। दिस टॉपिक्स रिलेट इंडियन हिस्ट्री एंड belongs to General Studies Paper 1 for Civil Services Main as well as state PCS exams both. What were the early signs indicating the beginning of national consciousness in India? And how did the Indian Independence Act of 1947 shape the final stages of India's journey to independence? What is the debate about the unfinished task of decolonization that lingers on, especially in the intellectual sphere? भारत में राष्ट्रीय चेतना की शुरुआती संकेत क्या थे और 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने भारत की स्वतंत्रता की यात्रा के अंतिम चरणों को किस तरह आकार दिया? डी उपनिवेशीकरण के अधूरे कार्य के बारे में क्या बहस जारी है, खासकर बौद्धिक क्षेत्र में। यहां पर देखिए एक वर्ड्स आ रहा है डीकोलोनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले यह समझें। मीन्स decolonization means process by which colonies become independent of the colonizing country। यानी वो प्रक्रिया जिसके द्वारा उपनिवेशी देश से स्वतंत्र हो जाते हैं। Now let us start. The process of decolonization in India was a prolonged one. There were linkings of it with the first stirrings of the national consciousness and the realization that India should not be ruled as a colony by alien British rulers. It was felt that the British did not rule in the interest of the Indians, but for the purposes of advancing the interest of the British Empire. In this sense, the 1857 Great Indian Mutiny, often called the First War of Independence, can be considered a strong, though ultimately thwarted, attempts the decolonization on the part of native Indians as they relied around the besieged, embattled and tragic figure of the last Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar. However, this significant event in modern Indian history led to the consolidation of the British control as the British Crown assumed direct rules over the India, setting aside the East India Company governance. भारत में उपनिवेशवाद के उन्मूलन की प्रक्रिया लंबे समय तक चली। राष्ट्रीय चेतना की पहली हलचल इस एहसास के साथ संकेत देने लगी थी कि भारत पर विदेशी ब्रिटिश शासकों द्वारा उपनिवेश के रूप में शासन नहीं किया जाना चाहिए। यह महसूस किया गया कि अंग्रेज भारतीयों के हित में नहीं बल्कि ब्रिटिश एम्पायर के हितों को आगे बढ़ाने के मकसद से शासन करते थे। और इस अर्थ में 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, मूल भारतीयों की ओर से उपनिवेशवाद के उन्मूलन का एक मजबूत, हालांकि अंततः विफल प्रयास माना जा सकता है, क्योंकि वे अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के घिरे युद्धग्रस्त और दुखद व्यक्तित्व के इर्द गिर्द एकजुट हुए थे। हालांकि आधुनिक भारतीय इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना ने ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत किया, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को दरकिनार करते हुए भारत पर सीधा शासन संभाला।
अब हम बात डिस्कस करेंगे कि भारत के लिए स्वतंत्रता के लिए सतत संघर्ष कैसे हुए। इंडिया परसिस्टेंट फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। हियर decolonization can be understood as a dynamic process in which the colonizer was sometimes compelled to loosen control in response to demands from the subjugated Indian society, which persistently pushed a unshackle itself from colonial control. These prolonged efforts culminated in India's independence in August 1947. In this process, the Indian National Congress, established in 1885, emerged as one of the most important political platforms for expressing nationalist ideas, which slowly and gradually increased by degree and level of political autonomy for Indians. One of the earliest manifestations of this slow and gradual increase of Indian autonomy came in 1892, 7 years after the establishment of the Indian National Congress. With the passage of the Indian Councils Act, this act expanded legislative councils, though the number of Indian members remained quite low. The Monumental Reforms of 1909, also known as the Indian Council Act of 1909, increased the number of Indian members. A decade later, the 1919 Montagu-Chelmsford Reforms marked significant shift, with the Secretary of State for India, Edwin Samuel Montagu, pointing out the House of Commons that the British government aimed for the increasing association of Indians every branch of the administration and the gradual development of self-governing institutions with a view to the progressive realization of responsible government in India as an integral part of the British Empire. अर्थात उपनिवेशवाद के उन्मूलन को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। इसमें उपनिवेशवादियों को कभी कभी पराधीन इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज की मांगों के जवाब में नियंत्रण ढीला करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, जो लगातार खुद को औपनिवेशिक नियंत्रण से मुक्त करने का प्रयास करता था। यह लंबे प्रयास अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ समाप्त हुआ और इस प्रोसेस में 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रवादी विचारों को व्यक्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मंचों में से एक के रूप में उभरा, जिसने धीरे धीरे भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वायत्तता की मात्रा को इस स्तर को बढ़ाया। भारतीय स्वायत्तता की इस धीमी और क्रमिक वृद्धि की सबसे पहली अभिव्यक्ति 1892 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के 7 साल बाद भारतीय परिषद अधिनियम के पारित होने के साथ हुआ। इस अधिनियम ने विधान परिषदों का विस्तार किया। हालांकि भारतीय सदस्यों की संख्या काफी कम रही। एक दशक बाद 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ने एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया, जिसमें भारत के सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने हाउस ऑफ कॉमन्स को बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का लक्ष्य प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी और ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकार की क्रमिक प्राप्ति के उद्देश्य से स्वशासित संस्थानों का क्रमिक विकास करना है। अब बात करेंगे पूर्ण स्वराज की मांग कैसे चली। डिमांड्स फॉर पूर्ण स्वराज। हियर नोटेबली until the late 1920s, the nationalist movement did not demand complete independence, but instead called for dominion status within the British Empire. In 1928, the Nehru Report, chaired by the Pandit Jawaharlal Nehru, Father Motilal Nehru, demanded dominion status for India. When the British rejected the demand for dominion status, the Indian National Congress responded the following year by the passing the historic Purna Swaraj or Complete Independence Resolution during its December session in Lahore.
The 750 word resolution stressed that India must sever the British connection and attain Purna Swaraj or complete independence. An important aspect of India decolonization movement is its firm rejection of violence in favor of civil disobedience. The Gandhian imprint on the national movement is evident. As mentioned earlier, the process of decolonization in India was prolonged and gathered momentum after the end of the Second World War. By this time, the economic costs of maintaining colonies had become prohibitive for many European colonial powers. This was especially true of the British Empire, which had the most extensive colonies across the world and which was famously known as the empire on which the sun never sets. अर्थात देखिए, समझें कि 1920 के दशक के अंत तक राष्ट्रवादी आंदोलन ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर प्रभुत्व की स्थिति की मांग की। 1928 में जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए प्रभुत्व की स्थिति की मांग की। जब अंग्रेजों ने प्रभुत्व की स्थिति की मांग को खारिज कर दिया तो कांग्रेस ने अगले वर्ष लाहौर में अपने दिसंबर सेशन के दौरान ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करके जवाब दिया। लगभग 750 शब्दों के प्रस्ताव ने जोर दिया कि भारत को ब्रिटिश संबंध तोड़ना चाहिए और पूर्ण स्वराज प्राप्त करनी चाहिए। भारत के विउपनिवेशीकरण आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू सविनय अवज्ञा के पक्ष में हिंसा की इसकी दृढ़ अस्वीकृति है। राष्ट्रीय आंदोलन पर गांधीवादी छाप स्पष्ट है। जैसा कि पहले उल्लेख किया है कि भारत में विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया लंबी चली और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद इसने और गति पकड़ी और इस समय तक कई यूरोपियन औपनिवेशिक शक्तियों के लिए उपनिवेशों को बनाए रखने की आर्थिक लागत निषेधात्मक हो गई थी। यह बात विशेष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सत्य थी, जिसके पास दुनिया भर में सबसे विस्तृत उपनिवेश थे और जिसे ऐसा साम्राज्य जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट इज भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, a good way of making sense of the process of decolonization is to think of the many colonies of the British Empire such as India, Pakistan, Ceylon जिसे हम श्रीलंका बोलते हैं, बर्मा जो वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, नाइजीरिया, सियरा लियोन, केन्या, रेडोसिया जिसे हम वर्तमान में जिम्बाब्वे बोलते हैं। In addition, there were many other colonies of other European powers. It gives to some understanding of how the process of decolonization created a new world, as the newly independent countries entered the Committee of Nations. The prolonged process of decolonization brought about the ultimate outcomes of political independence from British rule through the Indian Independence Act, passed in the British Parliament in July 1947. This act led to creation of Pakistan and India on August 14 and 15, 1947 respectively. The act was passed by the Labour government of Prime Minister Clement Attlee, while the powerful conservative leader of the opposition, Winston Churchill, reluctantly accepted Indian independence. On 26 January 1950, India became a sovereign and democratic republic. It is worth bearing in mind that 26 January was the date that had been observed as Purna Swaraj Divas since 1929, as the resolution of that name had been publicly announced on that very date. अर्थात ये समझे कि विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है
कि ब्रिटिश साम्राज्य के कई उपनिवेशों के बारे में सोचना है, जैसा कि उदाहरण के लिए भारत, पाकिस्तान, सीलोन जो श्रीलंका, म्यांमार, नाइजीरिया, सियरा लियोन, केन्या, जिम्बाब्वे के अलावा अदर यूरोपियन पावर्स के कई उपनिवेश थे। यह हमें कुछ हद तक यह समझने में मदद करता है कि उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया ने एक नई दुनिया का निर्माण कैसे किया, क्योंकि नए स्वतंत्र राष्ट्रों के समुदाय में शामिल हो गए। विपनिवेशीकरण की लंबी प्रक्रिया ने जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतिम परिणाम को सामने लाया। इस एक्ट के कारण क्रमशः 14 और 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत का निर्माण हुआ। इस अधिनियम को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की लेबर सरकार ने पारित किया था। इंपॉर्टेंट लाइन फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि विपक्ष के शक्तिशाली कंजर्वेटिव नेता विंस्टन चर्चिल ने अनिच्छा से भारतीय स्वतंत्रता को स्वीकार किए और अंततः 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। यहां पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि 26 जनवरी ही वह तारीख है जिसे 1929 से पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि इसी दिन इस नाम का संकल्प सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया था। नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे उपनिवेशवाद के उन्मूलन और एक नई विश्व व्यवस्था को, डीकोलोनाइजेशन एंड ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। Despite the new political facts that ushered in the New World Order with the end of the Second World War and the process of decolonization, the new order was instituted in favor of the former colonial metropolitan countries and to the determinant of newly independent nations like India. As the Second World War came to an end, the Bretton Woods system was created largely under a inspiration and guidance of the famous Cambridge economists John Maynard Keynes. This was a system that established financial and development institutions such as the International Monetary Fund (IMF) and the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), also known as the World Bank. These institutions were meant to ensure financial and economic stability in the world economy, but were created from the perspective of the developed countries. The imbalance in the international world order resulted in the call for new international economic order in 1974, which sought to integrate the newly independent countries into a global economy more equitably by addressing the imbalance in terms of trade and protecting this sovereignty. The impetus for the NIEO came from the G77, a coalition of developing countries formed in 1964, initially comprising 77 countries. The G77 was intended to put forward the interest of the developing countries, many of which were also part of the non-aligned movement NAM, a group that India played a vital role in establishing. While the NAM tended to look after the political interest of the countries of the global south, the G77 focused on protecting their economic interests. These economic interests were also protected and furthered through the United Nations Conference on Trade and Development, means UNCTAD, UNCTAD, which was established in 1964. अर्थात ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति और उपनिवेशवाद के उन्मूलन की प्रक्रिया के साथ ही एक न्यू वर्ल्ड सिस्टम यानी नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत करने वाले नए राजनीतिक तथ्यों के बावजूद नई व्यवस्था पूर्व औपनिवेशिक महानगरीय देशों के पक्ष में और भारत जैसे नए स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए हानिकारक थी।
जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, ब्रेटन वुड्स प्रणाली का निर्माण काफी हद तक प्रसिद्ध कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स की प्रेरणा और मार्गदर्शन में किया गया। यह एक ऐसा सिस्टम था जिसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक जैसे फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, जिससे वर्ल्ड बैंक के रूप में जाना जाता है। इन इंस्टीट्यूशंस का उद्देश्य वर्ल्ड इकोनॉमी में फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सुनिश्चित करना था, लेकिन इन्हें विकसित देशों के दृष्टिकोण से बनाया गया था। इंटरनेशनल वर्ल्ड सिस्टम में यानी अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था में असंतुलन के परिणाम स्वरूप 1974 में एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का आह्वान किया गया, जिसका उद्देश्य व्यापार के संदर्भ में असंतुलन को दूर करके और उनकी संप्रभुता की रक्षा करके नए स्वतंत्र देशों के ग्लोबल इकोनॉमी में अधिक समान रूप से एकीकृत करना था। NIEO के लिए प्रेरणा G77 से मिली थी, जो 1964 में गठित विकासशील देशों का गठबंधन था। स्टार्टिंग में 77 कंट्रीज से मिलकर बने G77 का उद्देश्य विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाना था। इनमें से कई गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का भी हिस्सा थे। यह एक ऐसा समूह जिसकी स्थापना में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जहां नैब ने ग्लोबल साउथ के देशों के राजनीतिक हितों की देखभाल की, वहीं G77 ने उनके आर्थिक हितों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और इन आर्थिक हितों को 1964 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, जिसे हम अंगटाट के कहते हैं, इसके माध्यम से भी संरक्षित और आगे बढ़ाया गया। नेक्स्ट समझे कि विकास बनाम उपनिवेशवाद उन्मूलन कैसे हुआ। मीन्स डेवलपमेंट वर्सेस डीकोलोनाइजेशन। The economic and political thinking that governed the early day of decolonization in the 1950s, 1960s and until the 1970s were modernization and development. The idea seemed to be that the newly decolonized countries needed to undergo a process of development in order to catch up with the nations of the first world. It was felt that the developing nations needed to compress into a few decades the development process that the more advanced countries had taken much longer to attain. However, such attitudes have since been critiqued by post-colonial theorists who question why decolonized countries should be expected to take the same trajectory and play a game of catch-up in development. One of the most important scholarly interventions that question the centrality of development and its role in the perpetuating the domination of global south societies by the global north were Colombian scholars Ernesto Escobar 1995 book Encountering Development, the making of the unmaking of the third world, where they argued in the direction of post-development. Critics of post-colonial theory have pointed towards a tension between the representational and discursive concerns often associated with post-colonial theory and the material practices emphasized in development theories. Despite all concentrations and critics of post-colonial theory, that it has done is to emphasize the unfinished task of decolonization, especially in the intellectual sphere. अर्थात समझें आप कि 1950, 1960 और 1970 के दशक तक उपनिवेशीकरण के शुरुआती दिनों में आर्थिक और राजनीतिक सोच आधुनिकीकरण और विकास पर आधारित थी। ऐसा लगता था कि नए उपनिवेशक देशों को प्रथम विश्व युद्ध के देशों के बराबर आने के लिए विकास की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह महसूस किया गया कि विकासशील देशों को कुछ दशकों में विकास प्रक्रियाओं को समेटने की जरूरत है।
जिसे हासिल करने में अधिक उन्नत देशों को बहुत अधिक समय लगा था। हालांकि इस तरह के दृष्टिकोण की आलोचना उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांतकारों द्वारा की गई, जो सवाल करते हैं कि वी उपनिवेशित देशों से यह अपेक्षा क्यों की जानी चाहिए कि वे उसी प्रक्षेपवक्र को अपनाएं और विकास में पीछे रहने का खेल खेलें। विकास की केंद्रीयता और वैश्विक उत्तर द्वारा वैश्विक दक्षिण समाजों के वर्चस्व को कायम रखने में इसकी भूमिका पर सवाल उठाने वाले सबसे महत्वपूर्ण विद्वानों के हस्तक्षेपों में से एक कोलंबियाई विद्वान आर्टुरो एस्कोबार की 1995 की पुस्तक एनकाउंटरिंग डेवलपमेंट, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड थी, जिसमें उन्होंने उत्तर विकास की दिशा में तर्क दिया था। उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत के आलोचकों ने अक्सर उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत से जुड़ी हुई प्रतिनिधित्वात्मक और विवादास्पद चिंताओं और विकास सिद्धांतों में जोर दिए जाने वाले भौतिक व्यवहारों के बीच तनाव की ओर इशारा किया। उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत की सभी वाद विवाद और आलोचनाओं के बावजूद इसने जो किया वो विशेष रूप से बौद्धिक क्षेत्र में उपनिवेशवाद के अधूरे कार्य पर जोर देना है। नाउ इन दिस लेक्चर में देखें, इस लेक्चर से पर बेस्ड मेन एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन जनरेट होंगे इस टॉपिक पर। तो ये हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डिड द ग्रेट इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 सिग्निफाई इन अर्ली अटेम्प्ट एट डीकोलोनाइजेशन इन इंडिया? कहने का अर्थ यह है इसका कि 1857 का महान भारतीय विद्रोह किस प्रकार भारत में उपनिवेशवाद को उन्मूलन के प्रारंभिक प्रयास का प्रतीक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वेज डिड द 1919 Montagu Chelmsford reforms contribute to the gradual realization of self rule in India? इसका अर्थ यह हुआ कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने भारत में स्वशासन की क्रमिक प्राप्ति में किस प्रकार योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 सेव द फाइनल स्टेजेस ऑफ इंडिया जर्नी टू इंडिपेंडेंस? इसका अर्थ यह हुआ कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने भारत की स्वतंत्रता की यात्रा के अंतिम चरण को किस प्रकार आकार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द मेन criticism of the Bretton Woods system from the perspective of global south countries? इसकी मीनिंग ये है कि वैश्विक दक्षिण देशों के परिप्रेक्ष्य से ब्रेटन वुड्स प्रणाली की मुख्य आलोचनाएं क्या थी। तो ये देखिए इस टॉपिक्स एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस यही थे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि मेन राइटिंग स्किल इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर मेनी एग्जामिनेशंस, और इसका वैल्यूएशन कराएं, उस अपनी कमियों को चिन्हित करें और सुधार करें। तो आज इतना ही। थैंक यू।